So yesterday we have discussed about the eye tracking, right? How heat map testing, that is one of the technique that is used to conduct eye tracking studies, right? There are several other techniques, right, using which you can do the same thing, eye tracking, right? And heat map is one of the technique, right? And in that we have seen that how the user, when we look at the SERP, see, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yes, in that we had seen that how users eye, how users focus, users eye gaze creates F-shaped pattern, right? When it comes to viewing, or let's say scanning of the SERP, right? So here we are seeing the same thing, right? So see, here you can see the most focused area is highlighted in the red color, right? Then um orange color, then yellow color, then green, and the area which receives the lowest amount of, lowest attraction, that will be highlighted in the blue color. Okay. So yes, this is, and see, this thing can be asked in the one marker also, right? Okay. While viewing, when viewing a standard Google SERP, users tended to create an F-shaped pattern. तो यहाँ पे जो F-shaped pattern होगा, वहाँ पे होगा fill in the blank होगा. तो भाई कौन सी पैटर्न जनरेट करता है, right? When we scan the SERP, yes, users tend to create an F-shaped pattern. तो ये याद रखना है इसका आंसर, F-shaped pattern क्रिएट होती है. ठीक है, right? uh, I think each and every paper you will be, you will see this one marker fill in the blank. Okay. Now next topic is click tracking. जैसा आई ट्रैकिंग होता है वैसे ही दूसरी टेक्निक है क्लिक ट्रैकिंग, right? To measure which portion of the SERP is getting highest number of clicks, right? So click tracking, how users click on results, natural versus paid. See, in the SERP, you will see two types of results. One is paid result, that is advertisement, and another is the organic result, or let's say natural results, right? So, how the user clicks on these two types of, uh, you know, results. How users clicks on these two types of results, paid versus natural, right? So, first of all, let's look at the data that is available to you. See, visibility of the natural search results is रैंक वन के ऊपर जो वेबसाइट है, ठीक है, इन दी नेचुरल सर्च रिजल्ट्स, राइट? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट? फॉरगेट अबाउट द पेड रिजल्ट्स. राइट नाउ वी आर सीइंग द डेटा रिलेटेड टू नेचुरल रिजल्ट्स, राइट? यहाँ दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये होगा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स. ठीक है, नेचुरल रिजल्ट एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स सेम थिंग. ओके, तो इसका डेटा हमें क्या दिखा रहा है कि जो रिजल्ट, नेचुरल रिजल्ट में जो भी वेबसाइट फर्स्ट रैंक के ऊपर होगी उसकी विजिबिलिटी होगी 100%. सेकंड रैंक के ऊपर जो भी वेबसाइट होगी लिस्टेड, राइट, उसकी विजिबिलिटी होगी अगेन 100%. थर्ड रैंक पे के ऊपर जो भी वेबसाइट होगी उसकी भी विजिबिलिटी होगी 100%. फोर्थ ranked website will be having 85% of the visibility. Visibility means what? कि यूजर एक्चुअली एक बार देखेगा कि भाई देखो ये क्या है, टाइटल रीड करेगा, यूआरएल देखेगा, एंड सम पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन यूजर विल रीड. ठीक है, तो एक बार वो पढ़ेगा. विजिबिलिटी मतलब उसकी है, उसका मीनिंग यही है कि भाई वो पढ़ेगा ये रिजल्ट क्या है, टाइटल टैग, यूआरएल क्या है, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हमारे मतलब जो हमें चाहिए रिजल्ट उसके रिलेटेड कुछ है या नहीं है. ठीक है, तो वो देखेगा एक्चुअली, ओपन करने की बात नहीं है, राइट?
यहाँ पे क्लिक करके फिर वेबसाइट ओपन करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ देखेगा, राइट? इट विल नजर जासे एनी एक बार। glance glance, okay, it is called as glance. हाँ, so वो first, तो सर आई ट्रैकिंग में આવે ને? हाँ, આઈ ટ્રેકિંગમાં જ આવે. યસ, એક્ઝેક્ટલી. આઈ ટ્રેકિંગ હા. એટલે હા, એ જ વસ્તુ છે કે see, when you hover the mouse over it, right, when you hover the mouse over the results, right, it will be considered as click tracking, right? They will try to identify the mouse positions and mouse click. ठीक है, तो यहाँ पे जो સર विजिट આપણે ક્લિક ન કર્યું હોય ને એમને ખાલી માઉસ હોય તો બી ઈ ક્લિક ટ્રેકિંગ માં આવે? यस, बट इट इज कंसिडर्ड विजिबिलिटी, राइट? विजिबिलिटी की बात है, राइट, कि वो देखेगा, ग्लांस लेगा. बट इफ यू क्लिक एंड ओपन दैट रिजल्ट, राइट, इफ यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विकिपीडिया, ठीक है, यहाँ पे जाके आपने फिर वो क्लिक किया, वेबसाइट ओपन की, ठीक है, तो फिर वो कंसीडर होगा CTR. CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट. CTR means click through rate. ठीक है, ये है CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, कि भाई आपको सर्च में दिखा है जितने रिजल्ट, उसमें से कितने एक्चुअली, कितनी वेबसाइट आपने एक्चुअली ओपन की, कितने वेब पेजेस को आपने एक्चुअली ओपन करके देखा. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखने की बात नहीं है, you just hover the mouse around it, right, and generate the visibility. That is the different thing, right? But if you compare visibility with CTR, then what is the important thing among these two, visibility or click through art? ये आपको मतलब पता चलना चाहिए कि भाई विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ज्यादा या क्लिक थ्रू रेट इंपॉर्टेंट है ज्यादा. सी बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं है, मतलब बोथ आर नीडेड, बट सबसे ज्यादा फैक्टर क्या काम करेगा आपके वेबसाइट के लिए, सर विजिबिलिटी क्लिक। और क्लिक थ्रू रेट? સર यस, एग्जैक्टली, CTR, क्लिक थ्रू रेट. क्योंकि देखो विजिबिलिटी में तो क्या होगा कि विजिबिलिटी में आपका, आपके वेब पेज का URL, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ठीक है, और इंटरनल लिंक्स कई पेजेस में होगी तो वो दिखेगी, ठीक है, दैट्स इट. बट व्हेन द क्लिक CTR is generated, right, that means that visitor is actually opening up your website and trying to look at the content of your web page, right? That is the CTR. ठीक है, see, let me show you, लेट मी टाइप दी SEO, सिंपल वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखो, ये मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है, माउस. ओके, व्हाट इज SEO, राइट? SEO stands for search engine optimization. Then I'll look at the second result, then third, fourth. Now if I click on this link, ठीक है, तो ये हो गया जनरेट CTR, क्लिक थ्रू रेट. फाइन, ओके. तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, CTR बाय सर्प पोजीशन, ठीक है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही, दिस विजिबिलिटी. ठीक है, क्योंकि कोई अगर देखेगा, राइट, आपका टाइटल टैग, आपका डिस्क्रिप्शन, तो ही वो CTR होगा ना, मतलब CTR में कन्वर्ट होगा. अगर किसी ने देखा ही नहीं है आपका रिजल्ट, ये क्या लिखा है किसी ने पढ़ा ही नहीं है, राइट, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, माउस होवरिंग, दैट मीन्स he or she is not going to open up this web page, क्योंकि उसने वो पढ़ा ही नहीं है, विजिबिलिटी है ही नहीं, तो CTR जनरेट होगा लो. देखो विजिबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो CTR भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो पढ़ने के बाद ही CTR जनरेट होता है. ओके, तो विजिबिलिटी अगर कम होगी तो CTR भी कम ही होगा, राइट? तो देखो यहाँ पे जो विजिबिलिटी पहले हम देख लेते हैं, विजिबिलिटी ऑफ नेचुरल सर्च रिजल्ट्स, राइट? फर्स्ट 3 रिजल्ट की विजिबिलिटी 100%, देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस. फोर्थ रैंक पे जो वेबसाइट अपीयर हो रही है नेचुरल रिजल्ट्स में, उसकी विजिबिलिटी है 85, देन 60, 50, 50, 30, 30 एंड 20. ठीक है, तो देखो 10th, फर्स्ट पेज पे जो 10th
रैंक पे जो वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी होगी 20%, सबसे कम, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो उसका CTR भी होगा सबसे कम। एक्चुअली यहाँ पे आपके बुक में तो 4th पोजीशन तक ही CTR है, राइट, कि फर्स्ट पोजीशन पे जो पेज आ रहा है उसका CTR है 42%। मतलब गूगल आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लाके दे रहा है कि आपको जो भी चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, वो 42% ऑफ द यूजर्स विल बी सेटिस्फाइड बाय द फर्स्ट रिजल्ट। मतलब उसको जो चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ लिखा है, मतलब एसईओ क्या है, मैंने फर्स्ट रैंक के ऊपर जो वेबसाइट है, वेब पेज, वो ओपन की, ठीक है, तो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए वो। तो दूसरा रिजल्ट, मतलब 42% यूजर को तो यहीं से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, फर्स्ट रिजल्ट से ही, राइट। फिर दूसरा जो दूसरे रैंक के ऊपर जो वेबसाइट है, दिस वन, एसईओ स्टार्टर गाइड, राइट, उसका CTR है 12% ओनली। देन थर्ड पोजीशन पे है उसका है 9%, फोर्थ पोजीशन का है उसका है 6%, एंड रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, राइट, विल रिसीव 31% ऑफ द टोटल क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू, ठीक है। तो देखो इससे पता चलता है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू, देखो ये स्टेप कुछ ऐसा है, राइट, आपको पूरा जो रोड मैप है आपका एसईओ की प्रोजेक्ट का सक्सेस का, राइट, वो कुछ ऐसे आपको क्रिएट करना है, रोड मैप टू सक्सेस, राइट। हाँ, बहुत ही अच्छा एक्चुअली वर्ड है, रोड मैप टू सक्सेस ऑफ एनी एसईओ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहली चीज क्या आपको माइंड में रखनी है कि all of your web pages must be crawled and indexed by the Google, ठीक है। अब ये आपको एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग क्या है, राइट, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, ओके। देन मतलब गूगल के डेटाबेस में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपके वेब पेजेस होने चाहिए, ठीक है, गूगल के डेटाबेस में। और गूगल के डेटाबेस में कैसे जाएगा, जब उसका सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर होता है क्रॉलर, क्रॉलर, राइट, आप क्रॉलर कहो या फिर बॉट कहो, एक ही बात है, क्रॉलर या बॉट, या तीसरा नाम भी है स्पाइडर, राइट, क्रॉलर, बॉट और स्पाइडर तीनों एक ही चीज का नाम है, और वो है सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो क्या करता है क्रॉलर, क्रॉलर है वो पूरे वेब में घूमता रहता है, दिस सॉफ्टवेयर, राइट, दिस बॉट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बॉट इज टू ट्रैवल अराउंड दी वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के ऊपर वो ट्रैवल करता ही रहेगा क्रॉलर, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू दी ओवरव्यू अबाउट क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वो घूमता रहेगा पूरे इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे घूमता रहेगा मतलब क्या है, इंटरनेट पे क्या हम देखते हैं, इंटरनेट पे क्या होता है, हम्म, इंटरनेट पे क्या मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन। सॉरी, वेब पेजेस, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ पे होस्ट होती है, वेब पेजेस। वेब वेब पेजेस, पेज। हाँ, यस, वेब पेजेस या लेट्स से वेबसाइट्स व्हाटएवर, ठीक है। तो क्रॉलर पूरे नेट के ऊपर घूमता रहता है, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट से वो ट्रैवल करता रहता है क्रॉलर, ठीक है। दिस इज द नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट, नेवर एंडिंग टास्क। एक क्रॉलर है वो घूमता ही रहता है, नेवर एंडिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर है उसका काम ही ये है, एक वेबसाइट, वेबसाइट ए पे गया, ठीक है, उसके बाद वेबसाइट बी, वेबसाइट सी, वेबसाइट डी, ऐसे जितनी भी वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है, इंटरनेट पे, वो सभी वेबसाइट को टर्न बाय टर्न विजिट करता रहेगा, ठीक है। और विजिट करेगा तो वो करेगा क्या, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो उस वेब पेजेस के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे वो घूमता रहता है, वो हर एक वेब पेजेस के ऊपर से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, और गूगल के सर्वर को भेज देता है, ठीक है। और फिर उसमें से जो यूनिक इंफॉर्मेशन होगी वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर होगी, राइट। और फिर जो भी डेटा गूगल के डेटाबेस में स्टोर होता है, मतलब इंडेक्स्ड होता है, ठीक है,
वो बाय अप्लाइंग दी एल्गोरिदम, उन सारे वेब पेजेस के ऊपर एल्गोरिदम जो इंडेक्स्ड है, ठीक है, उस सारे वेब पेजेस के ऊपर एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और आपको कौन सा पेज फर्स्ट रैंक के ऊपर आएगा, कौन सा पेज सेकंड रैंक के ऊपर आएगा, ठीक है, रैंकिंग, राइट, वो तय करेगा एल्गोरिदम कि कौन सा वेब पेज फर्स्ट रैंक के ऊपर आएगा, सेकंड रैंक के ऊपर, थर्ड रैंक के ऊपर, ऐसा, राइट। बट वो रैंकिंग कब होगा, जब इंडेक्सिंग होगा, गूगल के डेटाबेस में आपकी वेब पेजेस या लेट्स से आपकी वेबसाइट जाएगी तब, स्टोर होगी तब, ठीक है। और गूगल के डेटाबेस में आपकी वेबसाइट कब जाएगी, स्टोर होगी, राइट, जब क्रॉलिंग प्रोसेस अकर होगी तब, ठीक है। सो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ये 3 प्रोसेस है जो हर एक सर्च इंजन फॉलो करता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, बिंग हो, बाइडू हो, नेवर हो, ठीक है, ask.com हो, डक डक गो हो, ठीक है, कोई भी आप सर्च इंजन ले लो, राइट। हर एक सर्च इंजन ये 3 काम तो करेगा ही करेगा, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस? एक्चुअली ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली यही है, बस मुझे जो कहना था वो आपको समझा दी, बट स्टिल विल लुक एट इट, राइट, आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। एक्चुअली 1 या 2 लेक्चर के बाद ही ये प्रोसेस आएगी, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, क्रॉलिंग एंड इंडेक्स, क्रॉलिंग देखेंगे हम, ठीक है, कि क्रॉलिंग एक्चुअली होता कैसे है, राइट। वो सिमुलेशन हम करेंगे उसका दूसरे सॉफ्टवेयर से, क्योंकि गूगल के क्रॉलर तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम उससे क्रॉलिंग कराए, हम इंडेक्सिंग देखे या रैंकिंग देखे, नो, we can see only the crawling part by simulating that process, crawling process, using one of the software, that will see how crawling process looks like, ठीक है। yes or no? No response? Yes, sir. Okay, fine. Yes, Yes, So sir. sir. हाँ, Yes, fine. sir. ओके, ओके, ओके। सी पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, so that is why I am expecting, though you are, you know, now you have become the senior most students in the current batch, तो थोड़ा तो होगा आपको वो, you know, like a feeling of superiority. सर बैठा बैठा सीनियर कुछ थे। नहीं सर, हाँ, ये सही कॉलेज बात है। આવ્યા વિના જ સિનિયર થઈ ગયા સર, सीनियर तो देखो, વિચાર કરો। यही तो यूनिक बात है आपकी कि कॉलेज आके तो सब सीनियर बनते हैं, जो कॉलेज ना जाके અમારે सीनियर बन અમારે जाए। એવી યુનિકનેસ નથી જોતી, અમારે કોલેજની મજા यस લેવી છે। सर। हाँ, तो नहीं नहीं, यू आर वेरी સર यूनिक અમુક यार। અમુક અમુક પ્રકારની જગ્યાએ યુનિકનેસ યુનિકનેસ, ને સર હા, માણસો સારા નથી લેખતા, એટલે ઈ સર પછી ડાયા માણસ ને ગાંડા માણસ માં ફેર હોય ને એના જેવું લાગે. એવું નથી, ઓલો see, યુનિક જ કહેવાય। but to me you are very unique यार, you all of you are very unique, you know, तो માસ नहीं પ્રમોશન वो યુનિકનેસ છે ઈ સારી છે અમારા માટે, हाँ, પણ वो ઓલી नहीं, वो નથી। क्या होता है इन दी हॉल ऑफ फेम, यू नो, देयर इज वन, ये एक है चीज, हॉल ऑफ फेम, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल क्रिकेटिंग में जो भी जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया हो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, लाइक ब्रैडमैन, राइट, डॉन ब्रैडमैन, लाइक सचिन तेंदुलकर, द्रविड एंड मेनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन, वो जाते हैं हॉल ऑफ फेम में, मतलब उसका नाम जाता है वहां पे हॉल ऑफ फेम, कि भाई ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स की लिस्ट है हमारे पास, देख लो, राइट, इन दी हॉल ऑफ फेम। सो आप भी वही हो, यू नो, इन दी हॉल ऑफ फेम। એવું નતું ओके જાવું फाइन। સર અમારે આમાં સર એમાં। હવે શું કોલેજ ચાલુ કરશે કે શું? सी वो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने आई थिंक लास्ट वीक ही कुछ ऐसा अनाउंस किया है, राइट, कि 15 अगस्त के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेज चालू होगी। અને થર્ડ વેવ એ સપ્ટેમ્બર માંથી જ ચાલુ થવાની છે, हाँ, सो એ ઈ જ છે। दे आर ऑन दी वेट एंड वॉच सिचुएशन, यू नो, कि भाई ऐसे ही अभी स्टार्ट नहीं करना है वरना फेल जाएगा, અત્યારે ઘટ્યું છે તો क्योंकि અત્યારે જ નથી ચાલુ કરી सी દેતા, घाइटू પછી છે એવું નથી, सी घाइटू છે that is okay, but the other thing is कि यू नो,
somewhere in the Sabarmati river in Ahmedabad. They have found the હા ખબર પડી ડેડ coronavirus સેલ્સ there in the water too. પણ એ ડેડ છે અને કઈ ઇફેક્ટિવ નથી એવું ત્યાંના ઓલા મિનિસ્ટરે કીધું છે જે Acha, આ okay, સંભાળતો હતો ને એને okay, fine, fine, fine. But still, they are on the, they are very alert now. हाँ, सो रिसेंट न्यूज़ ये है, ठीक है, कि भाई 15 अगस्त के बाद आपकी कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल चालू होगी। अब तब जाके फिर अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो फिर शायद ना भी हो, नेवर नो। ठीक है, तो सर थर्ड ईयर भी घर बैठे नहीं निकलना है। सी यू सर ये तो प्रेजेंट बचाने में फ्यूचर घुमा रहे हैं आज सर कल हमारा। निकल जाता सी સર હમણાં કાલના ન્યૂઝપેપરમાં જુલાઈનું કહેતા હતા કે જુલાઈમાં હાયર સેકન્ડરીની કદાચ કરશે ચાલુ। हाँ, तो देखो वो एक्चुअली रिवाइज करेंगे और अगर उन लोगों को लगेगा कि नहीं अभी है, राइट, नाउ दिस इज द टाइम दैट वी शुड ओपन अप द कॉलेजेस एंड वी शुड स्टार्ट ऑन ऑफलाइन एजुकेशन, देन वो आएगी अपडेट, राइट। सो न्यूज़ देखते रहना, ठीक है, वो जब आएगा तब हम चालू कर देंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गेट सक्सेस ऑफ एनी एसईओ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये टारगेट करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि भाई आपकी वेबसाइट है वो क्रॉल हो जाए और इंडेक्स हो जाए। रैंक आए या ना आए, ठीक है, वो गूगल के ऊपर है, वो हमारे हाथ में, मतलब हमारे हाथ में है, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी सेवरल फैक्टर्स। ओके, देन दूसरा टारगेट आपका ये रे रहना चाहिए, ठीक है, कि योर वेबसाइट or let's say your web page should appear in the top 10 results on several keywords। ठीक है, कि आपके वेब पेजेस, राइट, मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में आने चाहिए, दिखाने चाहिए सर्च इंजन में। ओके, ये होना चाहिए आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि योर वेब पेज शुड अपीयर इन टॉप 5 रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें टाइम लगता है, राइट, दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, राइट। फिर फोर्थ स्टेप आपका होना चाहिए कि अगर टॉप 5 में आ रहा है आपके वेब पेजेस, सो यू शुड ट्राई टू ऑप्टिमाइज टू गेट इंक्लूडेड इनटू द टॉप 3 रिजल्ट्स। तो पहले 3 रिजल्ट में आए, फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए, और फिर एट लास्ट, राइट, योर वेब पेज शुड अपीयर इन एज द टॉप रिजल्ट, as the number one ranked result on several keywords। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका रोड मैप। बस अगर ये आपको आ गया, राइट, देन you will be considered as a master in SEO। ठीक है, बट डायरेक्टली अगर आप यही ट्राई करोगे स्टेप 5, ये नहीं होता ऐसे। ठीक है, पहले आपको यही देखना है कि आपके सारे पेजेस स्क्रॉल हो, सारे पेजेस इंडेक्स्ड हो बाय द गूगल। ठीक है, देन टॉप 10 में कुछ पेजेस आए मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, फिर टॉप 5 में कुछ आपके पेजेस आए, देन टॉप 3 में आए, और फिर जाके नंबर 1 पे रैंक आए। क्योंकि उसमें देखो क्या है कि पेज 1 के ऊपर अगर आपको आना है, पेज 1, ठीक है, तो कंपटीशन काफी टफ होगी। ठीक है, तो पहले आप टॉप 10 में आओ, फिर टॉप 5 में आओ, फिर टॉप 3 में आओ, फिर जाके टॉप में आओगे। ठीक है, सो इट विल टेक some time, and see typically SEO optimization process will take around
6 to 8 months. यस, आपको कोई प्रोजेक्ट दे एसईओ के एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई वेबसाइट अगर आपके पास आई है, देन इट वुड टेक अराउंड 6 to 8 months. आपको उसको बोलना है कि भाई देखो मैं आज एसईओ का काम शुरू करूंगा आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है. सो 6 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखाएगा सर्च इंजिन में, क्योंकि कंपटीशन को बीट करके आपको ऊपर जाना है. सो इट विल टेक टाइम, राइट. ओके. यस सर. यस सर. Okay. So, yes, coming back to our topic, ठीक है कि हाँ, ये चीज है कि क्लिक थ्रू रेट पहली पोजीशन के ऊपर जो रैंक करेगा जो भी वेब पेज, उसका क्लिक थ्रू रेट हाईएस्ट होता है 42%. तो इसलिए जरूरी है देखो कि आपको टॉप 5 में जब तक आप नहीं पहुंचोगे, टॉप 5 में आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा फ्रॉम द सर्च इंजिन, राइट. यू विल बिजनेस नहीं मिलेगा, और लेट्स से, ठीक है. तो you should always try to optimize your website to achieve at least your web page should get included in the top 5 results. Okay, क्योंकि क्लिक थ्रू रेट है वो इस तरह का हमें इंडिकेशन दे रहा है, राइट. एंड सी यहाँ पे जो डेटा है वो कह रहा है कि फर्स्ट 10 रिजल्ट्स, टॉप 10 रिसीव्ड 89.7% ऑफ ऑल क्लिक थ्रू ट्रैफिक. तो मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लिक थ्रू रेट वो टॉप 10 में ही जाता है, ठीक है. 10% ऑफ द क्लिक थ्रू रेट गोज टू द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट्स, राइट. और देखो 11 to 20 जो रिजल्ट्स है, जो सेकंड पेज होता है उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट जनरेट होता है 4.37%, वेरी लो. थर्ड पेज will have 2.42% click through rate, and fifth page, right, will have 1.07% of the click through rate. तो देखो अगर आप टॉप 10 में आपकी वेबसाइट नहीं है, then definitely you will get a very low amount of traffic on your website from the search engine. But disappointment होने की बात नहीं है, ठीक है. धीरे धीरे आपकी वेबसाइट अप आएगी if you truly put on your hard work, ठीक है. तो फिर आपकी वेबसाइट आ जाएगी. इफ यू राइट सी, और कैसे आएगी वो हम बाद में डिसाइड देखेंगे, ठीक है, कि भाई क्या क्या आपको करना होगा. एक तो मैंने चीज बताई कि टाइटल टैग अच्छी तरीके से आपको फ्रेम करना है, राइट, बिकॉज टाइटल टैग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर, ठीक है. ओके, देन यस, ये दूसरा एक रिसर्च है कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नेल स्टडी 72% ऑफ द सर्चर्स क्लिक ऑन द first link of interest, whereas 25% read all listings on the first page and then decide which one to click. 72% of the searchers है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आप कोई भी कीवर्ड डालो, फर्स्ट पेज तो ओपन करेंगे ही करेंगे विदाउट रीडिंग एनीथिंग, ठीक है. एंड 25.5% सर्चर्स ऐसे होते हैं जो सर्च इंजन यूजर्स है, वो क्या करेंगे कि भाई पूरे सारे लिस्टिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, सारे लिस्टिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, देन डिसाइड विच वन टू क्लिक. फिर जाके वो देखेंगे कि भाई ये ओपन करना है, ये क्लिक करना है, ठीक है, ये वेब पेज ओपन करना है, लाइक दैट. ओके, तो ये है विजिबिलिटी ऑफ द नेचुरल सर्च रिजल्ट्स. फिर विजिबिलिटी है ऑफ द पेड सर्च रिजल्ट. विजिबिलिटी ऑफ द पेड सर्च रिजल्ट. पेड सर्च रिजल्ट्स मींस एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है. तो रैंक 1 के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लिखूं क्रिएट वेबसाइट, तो यहाँ पे रैंक 1 पे जो वेबसाइट आ रही है एड, राइट, वहां पे विजिबिलिटी होगी 50%, रैंक 2 के ऊपर 40%, एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है. यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे एक्चुअली 2 ही वेबसाइट है, कई बार ज्यादा भी आती है, राइट. ओके, तो हाँ, ये है विजिबिलिटी ऑफ द पेड रिजल्ट, राइट. यहाँ पे 8 वेबसाइट्स 1 by 1 लिस्टेड होती है. अब 8 चलो मैंने यहाँ पे देखी है ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है. यहाँ पे तो मैंने आई थिंक 5 या 6 देखी है मैक्सिमम.
here just above the organic result. कई बार आती है, ठीक है, more and more websites will appear just below the organic result. तो देखो यहाँ पे भले ही आप यहाँ पे पे कर रहे हो, ठीक है, टू यू नो टू गेट द ट्रैफिक, आप एड डिस्प्ले करोगे, दैट मीन्स यू नीड टू पे, राइट, सम अमाउंट टू द गूगल. तो after, even after paying, even after spending a lot of money in the advertisement, right, you will get a very low amount of visibility as compared to the natural results. ठीक है, तो ये नेचुरल रिजल्ट जो है, ठीक है, वो आप अचीव कर पाओगे बाय इम्प्लीमेंटिंग दी गुड एसईओ प्रैक्टिसेस, राइट. नेचुरल रिजल्ट्स और ऑर्गेनिक रिजल्ट का मीनिंग है, सी इफ यू ट्राई टू achieve ranking in the as the organic and let's say natural result, right, then it is called SEO, search engine optimization. And if you pay for the advertisements, then it will be the part of SEM, search engine marketing. ठीक है, तो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट इवन आफ्टर पेइंग some amount you will not get as effective result as you would get by implementing the good SEO practice, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी भी ज्यादा है और क्लिक थ्रू रेट भी ज्यादा है, ठीक है. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का क्लिक थ्रू रेट नहीं दिया है आपके बुक में, राइट, ओके, बट इट टेंड्स टू बी वेरी लो क्योंकि विजिबिलिटी कम है, तो क्लिक थ्रू रेट तो कम ही होगा डेफिनेटली, ठीक है. सो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा पे करने से अच्छा है यू शुड ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट बाय यूजिंग द एसईओ प्रैक्टिसेस, गुड एसईओ, एथिकल एसईओ प्रैक्टिसेस, सर ठीक है. यहाँ पे भी है. यस सीटीआर यस पार्थ, का डिपेंड करता है ना विजिबिलिटी पे. यस एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि विजिबिलिटी कम होगी, कोई देखेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं आपका यू नो टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन एंड अदर थिंग्स, देन डेफिनेटली क्लिक थ्रू रेट तो कम ही होगा, ठीक है. सो हाँ, इसमें भी एसईओ में भी दो दो पार्ट्स हैं, ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ. ब्लैक हैट एसईओ की भी काफी सारी टेक्निक्स है, राइट, और व्हाइट हैट एसईओ मींस एथिकल एसईओ. एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गूगल यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट, दैट बिकम्स व्हाइट हैट एसईओ. और ब्लैक हैट एसईओ क्या है, बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन ट्रिक्स, राइट, यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, बट वो ट्रिक है वो गूगल को समझ में आ जाती है बिकॉज गूगल हैज डेवलप्ड अ वेरी यू नो इंटेलिजेंट algorithm nowadays. गूगल इज यूजिंग यू नो काफी अच्छा algorithm अब गूगल ने बना लिया है, ठीक है. तो अगर आप कोई ट्रिक अप्लाई करोगे, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको रैंकिंग में काफी नुकसान होगा, ठीक है. तो ये नहीं करना चाहिए, राइट, ओके. और देखो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू होता है वो होता है पे पर क्लिक, ठीक है. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो आप दिखाते हैं उसका पेमेंट आपको कैसे करना है, पे पर क्लिक, मतलब एक क्लिक का प्राइस होता है कि लेट्स से काफी कॉम्पिटिटिव अगर टर्म होगी, राइट, काफी कॉम्पिटिटिव टर्म होगी, कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आपको एड डिस्प्ले करना है, ठीक है, उसमें कंपटीशन अगर ज्यादा होगी इस कीवर्ड के ऊपर, राइट. कंपटीशन ज्यादा मतलब क्या है कि भाई एक कीवर्ड के ऊपर काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दे रहा है, 6 या 7, तो 6 या 7 अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है एक कीवर्ड के ऊपर, राइट, दैट मीन्स हाई कंपटीशन, राइट, ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. तो वो कितना प्राइस है एक क्लिक का, राइट, जो आपको पे करना होगा गूगल को टू शो योर एडवर्टाइजमेंट,
वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि भाई $1 पर क्लिक, $0.50 पर क्लिक, $0.20 पर क्लिक, ऐसा है, हर एक क्लिक के ऊपर है वो डिसाइड होगा प्राइस, पे पर क्लिक। सो यहाँ पे जो ये गूगल का एडवर्टाइजमेंट मॉडल है, राइट, वो है पे पर क्लिक, हर एक क्लिक के ऊपर आपको पे करना होगा गूगल को, ठीक है, ऐसा है, राइट। सो actually see, small organization cannot afford this mechanism, राइट, छोटी छोटी कंपनियां होगी वो ये एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड नहीं कर पाती क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है, टू शो द एडवर्टाइजमेंट ऑन द गूगल, वेरी हाई, राइट। तो काफ़ी जो बड़े मीडियम स्केल या लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे गूगल पे एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करना, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर क्लिक ट्रैकिंग, now we will try to look at another concept, that is how people search in the search engine। कैसे सर्च इंजन है वो नॉर्मल पीपल को, टू अ लेमन, हाउ इट विल बी यूजफुल। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक नो हाउ पीपल सर्च, सी, एक क्वेरी सेशन है, दिस इज द क्वेरी सेशन, राइट। अब ये क्वेरी सेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक बंदे को डिसीजन लेना है कि विच शूज टू बाय, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो विच मोबाइल टू बाय, वो आपको पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा मोबाइल ले, तो सर्च इंजन आपको वो डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगा, राइट, उसकी बात है। तो यहाँ पे मोबाइल की जगह पे एग्जांपल है शूज का, कि किसी को शूज परचेस करना है, राइट, एट एन अफोर्डेबल रेट, सो हाउ सर्च इंजन विल हेल्प टू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। तो देखो ये सर्च इंजन का पूरा जो क्वेरी सेशन है वो चला था 55 मिनट्स, राइट, उसका एक एग्जांपल है। तो इनिशियली यूजर ने सर्च इंजन में टाइप किया था मैरेल शूज, कोई एक ब्रांड होगी शूज की, मैरेल शूज, ठीक है, सबसे पहली क्वेरी इसने डाली थी मैरेल शूज। फिर यहाँ पे जाके सर्च के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, एक्चुअली सी इट विल टेक सम टाइम, ओके, वी आर हैविंग टाइम, एक्चुअली 11:55, हाँ। तो देखो यहाँ पे मैरेल शूज का एक क्वेरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वही क्वेरी, राइट, मैरेल शूज, राइट, तो ये आया, सर्प आया, ठीक है। वहां पे इस बंदे ने क्या किया, दो वेबसाइट ओपन की, राइट, सर्प में टॉप 10 वेबसाइट आएगी पहली पेज के ऊपर, वहां पे उसमें से दो वेबसाइट को ओपन किया, onlinestores.com, उसके ऊपर 2 मिनट रहा, और merrell.com, ठीक है, जो ये ब्रांड की कंपनी है, ब्रांड की वेबसाइट है, उसकी खुद की वेबसाइट, मैरल ब्रांड की खुद की वेबसाइट merrell.com, ठीक है, उसके ऊपर इस यूजर ने ड्वेल किया, मतलब वहां पे वो यूजर रहा फॉर दी 1 मिनट, ओके। फिर उसने अपनी क्वेरी कर दी चेंज, मॉडिफाई, कि भाई मुझे यहाँ पे मैरल शूज तो ठीक है, बट नाउ आई एम चेंजिंग माई क्वेरी एंड नाउ आई विल पुट ऑन डिस्काउंट कीवर्ड इनटू माई क्वेरी। तो नाउ क्वेरी बन गई डिस्काउंट मैरल शूज। फिर जाके उसने सर्च किया तो फिर से वो सर्प अपीयर हुआ होगा, ठीक है, डिस्काउंट मैरल शूज, यहाँ पे इस क्वेरी के आगे उसने लगा दिया डिस्काउंट मैरल शूज, ठीक है, तो फिर कुछ उसको ऐसे रिजल्ट मिले होंगे, राइट। तो उसमें से फिर उन उस बंदे ने ओपन की एक वेबसाइट nexttag.com, जिसके ऊपर कुछ डिस्काउंटेड मैरल शूज अपीयर हुए होंगे, ठीक है, एट द डिस्काउंटेड प्राइस, और इस वेबसाइट पे वो बंदा रहा फॉर दी 4 मिनट्स टोटल। फिर अगेन जाके उसने क्वेरी चेंज कर दी, ठीक है, मैरल वुमेन्स सैंडल्स, तो अब पता चला कि भाई देखो ये है वो, उसकी जेंडर होगी वुमन, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट।
या फिर ये उसकी वाइफ को या सिस्टर को गिफ्ट करना चाहता होगा, अगर ये मेल होगा तो, ठीक है। सो हाँ, फिर ये क्वेरी मॉडिफाई करके उसने कीवर्ड डाला मैरल वुमेन्स सैंडल्स। सो अगेन सर्प विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस कीवर्ड। तो वहां पे उसने एक वेबसाइट ओपन की होगी coachlikeapro.com, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर वो 8 मिनट तक रहा, ठीक है। फिर उसने ब्रांड बदल दी कि भाई मैरल ब्रांड में मुझे जैसी चाहिए उस ऐसी डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो इसने लगा दी दूसरे ब्रांड का नाम क्लार्क शूज, ठीक है। ब्रांड बदल दी, नहीं पसंद आया इस ब्रांड की डिजाइनिंग या प्राइसेस कुछ भी हो, ठीक है। तो ब्रांड चेंज कर दी क्लार्क शूज। फिर इस क्वेरी के ऊपर जो सर्प अपीयर हुआ होगा उसमें से एक वेबसाइट उसने ओपन की clarks.com, वहां पे वो रहा फॉर दी 9 मिनट्स, ठीक है। और फिर जाके कुछ इजी स्पिरिट, फिर से उसने ब्रांड बदल दी इजी स्पिरिट, राइट। और इजी स्पिरिट के ऊपर सर्च किया तो सर्प में से एक वेबसाइट उसने ओपन की zappos.com, जिसके ऊपर वो 1 मिनट रहा। और दूसरी वेबसाइट उसने ओपन की easyspirit.com, जो इसी ब्रांड की कंपनी की वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट के ऊपर वो रहा 27 मिनट। तो सबसे ज्यादा देखो, जितनी भी वेबसाइट इन्हें ओपन की है, राइट, बाय टाइपिंग दी डिफरेंट क्वेरीज, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट्स, 8 मिनट्स, 9 मिनट, राइट, 1 मिनट, बट ये वेबसाइट पे वो सबसे ज्यादा रहा 27 मिनट, ठीक है। तो हम अंदाजा लगा पाएंगे कि क्योंकि ये 27 मिनट तक रहा एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो उस बंदे ने, राइट, या बंदी ने, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर से परचेस किया होगा, राइट। दैट इज द गैस एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से सर्च इंजन आपको हेल्प करेगा इन टेकिंग द डिसीजन। ये एक एग्जांपल है, राइट, कि भाई देखो हमें जो चाहिए ना वो फर्स्ट क्वेरी से ही नहीं मिल जाता, हमें भी अपनी जो क्वेरीज है वो बार बार मॉडिफाई करनी होती है, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, राइट, मॉडिफाइंग द क्वेरी टू गेट द बेटर रिजल्ट, ओके। तो ये एक क्वेरी सेशन है। दूसरा भी एक एग्जांपल है आपके बुक में द आर्ट ऑफ एसईओ, वो आप लोग यू गो थ्रू कि आपको कौन सा डिजीज है वो सिम्टम्स से कैसे पता लगाना है, वो एग्जांपल दिया है सर्च क्वेरी का, ठीक है। कि कैसे सर्च इंजन आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है, राइट। उसका एक क्वेरी सेशन दिया है, दूसरा एग्जांपल है बुक में, वो आप देख लेना, ठीक है, इन द आर्ट ऑफ एसईओ बुक, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन इन दिस? नो? No, sir. Fine. So uh, let me see that all of you are having the roll number alongside your you know username। तो मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा, अदरवाइज आई नीड टू टेक दी अटेंडेंस। हाँ, सभी के है, रोल नंबर्स आ गए सभी के? આવી જોઈએ સર।